That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. No, but our government, I don't believe that way. our government has attacked the Jaish-e-Mohammed camp. What they say? Well, I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. That doesn't mean I am on this side or that side. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. Okay? And then comes the global media and says that nobody was killed. I look bad as Indian citizen. बात पर भी कायम है क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया है। हम तो इतना ही कहते हैं कि एज ए सिटीजन आई एम एंटाइटल्ड टू नो व्हाट हैपेंड, दैट्स ऑल। उसमें गड़बड़ क्या है? लेकिन आप सिटीजन से ज्यादा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। नो, बट आई वाज टॉकिंग एज ए सिटीजन। आई टोल्ड एएनआई दैट आई एम नॉट टॉकिंग एज ए पार्टी, आई एम जस्ट आस्किंग एज ए सिटीजन। आई एम एंटाइटल्ड टू नो। लेकिन सर, जिस तरह से पूरे इस इशू पे विवाद हुआ, आपको लगता है कि एयर स्ट्राइक को लेकर गवर्नमेंट को कोई जवाब देना चाहिए या बताना चाहिए, जैसे आर्म फोर्सेस ने कि हमें तो काम नहीं की लाशें? नो, दैट इज अप टू गवर्नमेंट, दैट इज नॉट माई जॉब। माई जॉब इज नॉट व्हाट गवर्नमेंट्स डू। ओके? लेकिन आपने सरकार की मंशा पे सवाल उठाया कि जिस तरह से आपने कहा कोई सवाल क्यों सवाल नहीं उठा सकते भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन रेजिंग ए क्वेश्चन? आई डोंट अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन. I don't understand why everybody is so excited. As a citizen in democracy, discussion, dialogue, debate, discourse is a way of life. Okay? And what's the problem? सरकार ने जैसे एयर स्ट्राइक का परमिशन दिया आर्म फोर्सेस को, एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, वहां पे 300 लोग मारे जाने की खबर है, लेकिन लगातार आपने जिस तरह से सवाल उठाया कि इंटरनेशनल मीडिया में वहां पे कोई ऐसे विवाद। So all I am saying is, I read in New York Times, and I want to know what are the facts. That's all. उसमें I don't understand what is the controversy. I am baffled at the response. Okay, it shows me how people react to trivial matters in India. It's a totally trivial matter. Okay. Some citizen asking a question, you can say, look, I don't have an answer. I don't want to give an answer. Okay, that's good enough. तो किसके रिस्पॉन्स से आप बैफल्ड हैं? Media. But Media what- response. You, ANI. You have said what we have shown. So that's okay. So you can show that. But interpretation is very different. Okay, you can show bits and pieces. You can show what you want to show. You may not show the whole thing. You may not show my comment before that we respect our Jawans. We respect their sacrifice. You may not show that. Okay? Go check it out. आफ्टर 26/11 आपने कहा कि हम भी चाहते उस वक्त आप कि हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स करना ठीक नहीं है। That was government's decision at that point in time. I respect that, and I respect this government's decision also. Government's decision is very different from individual opinion. Okay? लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जिस तरह टेरर कैंप्स हैं, वो टेरर कैंप को लेकर आपकी सरकार ने भी कई बार कहा, जब आपकी यूपी की सरकार थी, कि वहां पे चल रहे हैं? See, I am not an expert on that, so I would rather not comment on it. I responded as part of a longer interview to that question. Okay? I am not here to talk about Pakistan, terrorists. That's not my field. Okay? I don't do that. It was just a response to a question that was asked in a longer interview. So I would rather say, that's enough. Okay? Thank you. ये समाजवादी पार्टी ऐसा बयान देगी, ऐसी कभी अपेक्षा नहीं थी। क्या भारत की कोई पार्टी इस तरह का बयान दे सकती है? जो बयान पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने खुद ही बम फोड़ लिए,
इस तरह का बयान दे रही है समाजवादी पार्टी। इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले कभी इसके लिए क्षमा नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को। नहीं, देखिए, यूएस ने एक नहीं अनेक बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है आतंकवाद को लेके, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान नाम का पाकिस्तान है, इस असल में आतंकिस्तान है। और आज पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते थे तो लोग कहते थे वो क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जाते थे कि पूरे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, और नरेंद्र मोदी जी की साख है कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और चाइना और पाकिस्तान अलग थलग खड़ा हो गया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि षड्यंत्र का हिस्सा था पुलवामा हमला, सरकार बदलते ही जांच होगी, इसके पीछे कुछ अलग षड्यंत्र काम किया है। कहने का मतलब भारत ने खुद हमला करवा दिया। ये भारतीय राजनीति और भारत पाकिस्तान किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीति का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोकतंत्र की मर्यादा भी भंग हो और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर भी सवाल उठे। मैं ऐसे किसी भी बयान को आपत्तिजनक मानता हूं। लेकिन सर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत जिस तरीके से वादी रवैये जो पाकिस्तान के हैं उसको लेकर आवाज उठाता है, इस तरह का बयान कितना नुकसान पहुंचाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को? ऐसे वक्तव्य निसंदेह भारत के आतंकवाद विरोधी रवैये और तथ्यों को कमजोर करते हैं। बीजेपी पलटवार यही करती है कि ये घटिया राजनीति का भद्दा उदाहरण है। नहीं, मैं पहले ही अपनी राय दे चुका हूं। विपक्षी दलों को, नेताओं को ऐसी आलोचनात्मक टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। लीडर अरुण जेटली ने आज 2-3 मुद्दे बहुत गंभीरता से गिनाए, चाहे वो गोधरा कांड हो, चाहे समझौता एक्सप्रेस के बाद जिहादी तत्व के बराबर हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द को गढ़कर एक ऐसे कम्युनिटी को जिसके चरित्र में आतंकवादी जैसा रवैया या देश का वैसा उदाहरण नहीं है, ये गढ़ने की कोशिश की गई। ना कोई इस्लामी आतंकवाद है हिंदुस्तान में, ना कोई भगवा आतंकवाद है। जो आतंकवादी हैं ना उनकी कोई जाति है ना मज़हब है, वो क्रिमिनल हैं, वो खूंखार हैं, वो अपराधी। श्री रामगोपाल यादव का बयान राजनीति की तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का एक भद्दा उदाहरण। श्री रामगोपाल यादव को सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करने और इस देश के बहादुर जवानों के मनोबल को तोड़ने वाले इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जब ये देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा हो, तब इस प्रकार की तुष्टीकरण के पोषक बयानों के माध्यम से देश के मनोबल को तोड़ने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के बयानों को यह देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता। हर हाल में यह देश अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ा है। इस देश की प्रत्येक नागरिक ने इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत की सामरिक ताकत का एहसास अपने दुश्मनों को कराने, सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के सामने मनवाने का जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, बालाकोट की घटना ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास देश के दुश्मनों को करवाया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को
बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। सीधे सीधे भारत के बहादुर जवानों की शहादत का घोर अपमान है। मैं राम गोपाल यादव के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। और राम गोपाल यादव को इतने गलत बयान, तथ्यहीन बयान देने के लिए, राष्ट्र विरोधी बयान देने के लिए देश से क्षमा मांगने की मैं मांग करता हूं। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए। ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या वैली में जैसे ही घुसते हैं, वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में। पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में, सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. No, but our government, I don't believe that way. our government has attacked the Jaish-e-Mohammed camp. What they say? Well, I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay? That doesn't mean I am not nationalist. That doesn't mean I am on this side or that side. We need to know the facts. If you say 300 people were killed, I need to know that. We all need to know that. People of India need to know that. Okay? And then comes the global media and says that nobody was killed. I look bad as Indian citizen.